Hello students, welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Drangadra. In today's video, we'll start the second part of chapter Parts and Wholes. Dear students, if you have not seen the part 1, by clicking on the link over here, you can watch that video. Dear students, if you have not subscribed our channel, please click on the subscribe button and press the bell icon to stay updated. Let us see part 2. Now here is an activity for you. Actually it is a practice time. Now let us see what we have to practice over here. A chocolate bar. Manju had a chocolate. This is having a chocolate. She is having a chocolate. She gave 1/4 of it to Razi. See now, out of these all parts, she has given 1/4 part to Raji, 1/3 to Sugatha, and 1/3 part to Sugatha. See, in maths, many students are saying that it seems very difficult. Actually, it is not difficult, but you are not able to understand the sum. That is the main issue. You are unable to understand the gist of the sum. यानी उसका जो main reason है कि आप इसको समझ नहीं पाते हो, बस और कुछ नहीं है. इतना tough नहीं है ये. Now 1/6 to Sheila. She ate the remaining part. और बाकी का जो पहला 1/4 है वो राजी को देना है, सेकंड 1/3 है वो सुगाथा को देना है, 1/6 पार्ट है वो शीला को देना है, और बाकी का जो पार्ट बचता है वो मंजू खुद खाएगी. How many pieces of chocolate did each get? Right here. Now first of all, we will give 1/4 part to Raji. See, this we have made a half. Total, C will count the number of pieces in a chocolate. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 6, total 12 pieces we are having in a chocolate. Now we have to divide among these three girls. Now we have divided this chocolate into two equal parts by drawing a line over here. Again we will draw one more line. Why? Because we have to give 1/4 part of the chocolate. See here, this is first 1/4, this is second 1/4, this is third 1/4, and this is फोर्थ 1/4. अभी सभी पार्ट्स को जो है, सभी पार्ट्स 1/4 हो गए हैं, तो इसमें से कोई एक पार्ट जो है, अब हमें 1/4 पार्ट जो है वो राजी को देना है. यानी ये 3 भी दे सकते हैं, ये 3 भी, कोई भी 3 हम इसमें से उसको दे सकते हैं. तो हमने ये 3 जो पार्ट है वो राजी को दे दिए. नाउ वी कैन सी आउट ऑफ 12 मंजू गेव 3 चॉकलेट बार टू राजी. दैट मीन्स अब हमारे पास टोटल 12 थे. We have given 3 to Raji and we have left with us 9 parts of the chocolate, 9 chocolate bar. Let us move on to the second one. The second question is 1/4 is over. Now second question is 1/3 to Sugatha. यानी 1/3 part जो है अब हमें सुगाथा को देना है. You may be wondering why this all 3 pieces we have given to Raji are again come back. Now see, हमें जो है टोटल 12 पार्ट्स लास्ट तक ही रखने हैं, तभी हमारा कैलकुलेशन सही होगा. ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरी चॉकलेट जो है वो 12 पार्ट्स की है और उसी को डिवाइड करके दे रहे हैं. तो हमने वो 3 पार्ट दे दिए हैं, हम लोग उसको काउंट करेंगे. अब हमारे पास सिर्फ 9 पार्ट्स ही है, लेकिन 1/3 काउंट करने के लिए ये 3 पार्ट्स भी हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि 12 का 1/3 हमें देना है किसको? सुगाथा को. तो हम लोग इसका 1/3 ढूंढने की कोशिश करते हैं. सी देखिए, नाउ वी हैव डिवाइडेड दिस चॉकलेट बार इनटू 1/3. दिस इज फर्स्ट 1/3, this is second 1/3, and this is third 1/3. यानी सबके अंदर आप काउंट कर लीजिए, क्या सबके अंदर बराबर चॉकलेट बार्स है क्या? 1 2 3 4. यहाँ 4 है तो नीचे भी 4 है, तो ये भी तो 4 है. अब सुगाथा को हम कोई भी एक पार्ट दे सकते हैं. चाहे तो आप ये 4 दे सकते हैं, ये भी 4 दे सकते हैं, ये भी 4. हम कोई भी पार्ट चाहे तो सुगाथा को दे सकते हैं. हम लोग दे देते हैं. चलो ये वाले 4 पार्ट जो है हमने सुगाथा को दे दिए. अब हमने पहले 3 पार्ट दे दिए थे राजी को, अब ये 4 पार्ट जो है वो सुगाथा को दे दिए. अब हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4 और 5. ये 3 तो हमने दे दिए थे राजी को, तो अब हमारे पास 5 पार्ट्स टोटल बचे. नाउ लेट अस सी, आउट ऑफ 12 मंजू गेव 4 चॉकलेट बार टू सुगाथा. 4 जो है उसको दे दिए. सो 12 माइनस 3 हमने किसको दिया था? राजी को दिया था. तब हमारे पास 9 बच गए, और 9 में से भी 4 हमने किसको दे दिया? सुगाथा को दे दिया. तो अब हमारे पास टोटल कितने पीस बन गए? 5. तो 5 कौन से? 1 2 3 4 और ये 5. Like this we have 5 chocolate bar with us. Now move on to the
लास्ट वन 1/6 टू शीला। अब शीला को देना है हमें 1/6 पार्ट। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 12 chocolate bars into 6 equal parts. Let us see. See, I have divided into, अब हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी हर एक पार्ट में जो है दो दो चॉकलेट बार आ रहा है। ठीक है, तो ये 1/6। अभी इसको जो है हमें देना है शीला को 1/6, तो हम कोई भी दे सकते हैं, ये दो भी दे सकते हैं, ये भी, ये लास्ट वाले दो भी, आपको जो मर्जी करता है उसको दो दे सकते हैं। तो हम लोग दो पार्ट्स उसको दे देते हैं, ये वाले दोनों पार्ट हमें उसको दे दिए। ये 3 तो हमने राजी को दिए थे, ये 4 जो है वो हमने किसको, सुगाथा को दे दिए। अब ये जो दोनों पार्ट बचे थे वो हमने शीला को दे दिए, है ना, 1/6 पार्ट उसको दे दिया। नाउ सी, सो आउट ऑफ 12 मंजू गेव 2 chocolate bar टू शीला, शीला को 2 दिया। सबसे पहले हमने राजी को 3 दिया, तो हमारे पास 9 बचे। 9 में से फिर 4 जो है हमने सुगाथा को दिया, तो हमारे पास 5 बने, 5 बच गए, और 5 में से 2 जो है हमने शीला को दे दिया, तो अब हमारे पास कितने बच गए, 3 पार्ट्स। नाउ सी, व्हाट पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड मंजू गेट। अब मंजू के पास क्या है, ये 3 ही तो बच गया है ना, दैट मीन्स उनको, मंजू को जो है 3 पार्ट मिला। हाँ, 3 पीसेस मिले, एक्चुअली पार्ट नहीं है, लेकिन मंजू का पार्ट अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पर देखें तो 1/4 पार्ट राजी को दिया था, तो उसको भी 3 मिले थे, तो मंजू को भी 3 मिले हैं, तो 1/4 पार्ट जो है वो कहा जाएगा कि मंजू को भी 1/4 पार्ट मिला। Yes. Now see, this is an interesting activity. Let us use colors. I have taken highlighter. Yes. Now see, color the hats. Now here we are having total 15 hats. We'll count it. Color 1/3 of hats with red. अब इसकी जो टोटल 1/3 है उसको हमें किससे कलर करना है, रेड कलर से करना है। कलर 3/4 hats blue. सॉरी 3/5 hats blue, यानी टोटल में से जो 3/5 है आउट ऑफ 15 वी हैव टू कलर 3/5 hats with blue color. Now the third question, पहले हम इसका ले लेते हैं, कलर 1/3 of hats with red. See, now 1/3 of 15. Now total we are having here is 15 hats. Let us count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15, टोटल 15 हैट्स है। सो 1/3 ऑफ 15 कितना होगा, देन वी हैव टू डिवाइड 15 बाय 3, सो द 3 5s are 15। तो टोटल जो 5 हैट्स है वो हम जो है रेड से कलर कर देंगे। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने ये रेड कलर करना शुरू किया। एक्चुअली पीसी में इतना परफेक्टली कलर नहीं हो पाएगा, वो पेंट्स यूज करना पड़ेगा, बट आई कैन डू इट फॉर यू नाउ। सी, दिस इज डन। ओके, now one hat we have colored. Okay, very nicely it was colored. No, there is no issue with it. I think I won't be unable, I will not be able to color this hat. Now we'll color the second one. Total we have to color 5 hats. Yes, this hat is also colored now. Okay, अब देखो ये फिनिशिंग तो नहीं होगा, ये आप जब अपनी नोटबुक में करेंगे तो अच्छे से फिनिश कर दीजिए। और हम लोग है ना जो ये वाला है उसको भी कर देते हैं रेड कलर से। Let's see. This is done. रेड कलर। नाउ टोटल 5 हैट्स हमें करनी है, इसको भी हम लोग जो है रेड कर देते हैं। इसमें थोड़ा कलर बाहर चला गया, बट देयर इज नो इश्यू विद द कलर गोइंग आउट ऑफ द हैट। सी, दिस इज आल्सो वी हैव कलर्ड विद रेड कलर। यस, दिस इज डन। नाउ 1 2 3 4 टोटल वी हैव टू कलर 5 हैट्स एंड दिस इज आवर लास्ट हैट। दिस इज डन। Very, yes, this is done. Now we have colored total 5 hats, so this red one is over. Now color 3/5 hats with blue. Now see, 3/5 of 15, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि 15 into 3 divided by 5. Now 15 into 3 is 45 और 5 जो है वो हमने कैरी फॉरवर्ड किया। If we divide 45 with 5, we will get 9 hats because 9 5s are 45. Yes. Now we will color with blue color. Okay, now I'll take blue color. यानी 9 hats जो है अभी हमें ब्लू करनी है। देखो 9 hats करने में बहुत टाइम जाएगा, मैं और कर देता हूँ उसको।
This is a blue color. 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 8. आपको तो अच्छे से कलर करना है, ऐसे नहीं चलेगा ये सब. And this is, let us count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 hats we have colored with blue. Now, how many hats did you colored red? We have colored 5 hats. How many hats did you colored blue? 9 hats. What part of the hats are not colored? See, this part is not colored. This part is not colored. ये जो वाला पार्ट है वो कलर्ड है नहीं, लेकिन वो कौन सा पार्ट रह गया? सी, ईच कैप इज रिप्रेजेंटिंग 15th पार्ट ऑफ द होल. हर एक कैप जो है 1/15 पार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. हम लोग ले लेते हैं पेन ताकि हमें पता चले. यहाँ पर हर एक कैप का कितना वैल्यू है पता है? 1/15 है. देखिए, है ना. तो ये वाला पार्ट एक कैप है, हमने कलर नहीं किया है, तो इसका कितना पार्ट हो गया? 1/15 हो जाएगा. ठीक है. सो 1/15 पार्ट ऑफ द रेड ऑफ द hats आर नॉट कलर्ड. 1/15 पार्ट जो है वो हमने कलर किया है नहीं. नाउ सी, आई विल चेंज द पॉइंटर. यस, equal parts of a triangle. See here we have made equal parts. The white triangle is divided into 3 equal parts. This white triangle is divided into 3 equal parts. Fill each 1/3 part with a different color. Can you show that these parts are equal? Yes, see, we'll color it with different colors. I'll take out a color for you. This will take green color. See, we have colored it. थोड़ा बाहर चला गया तो इसको मिटा देंगे. Erase. देखो, ये तो इसमें तो इतना परफेक्शन से कलर नहीं हो पाएगा, बट आपको तो बड़े परफेक्शन से इसको कलर करना है, थोड़ा अच्छा दिखे उस तरह करना है. ठीक है, चलो, दिस इज डन. एंड 3 डिफरेंट कलर यूज करने हैं. एक रेड यूज कर लेंगे हम लोग, ये वाला रेड यूज कर दिया. एक और कलर हम लोग ले लेंगे, पर्पल कलर. Yes, this is done. Now, can you show that these parts are equal? Think how. देखो, अब हम इस पता कैसे करेंगे कि ये तीनों पार्ट इक्वल है? सिंपल सी बात है. इसको जब हमें पता करना है कि ये तीनों पार्ट इक्वल है तो इसको काटना पड़ेगा. काट के हम एक दूसरे के ऊपर इसको ओवरलैप करेंगे. देन ऑल्सो वी विल कम टू नो दैट these 3 parts are equal. Now move on to the second one. Now try to make 3 equal parts of these triangle in a different way. एक तो ये तरीका हो गया. अब यहाँ पर दूसरे तरीके से हमें जो है ये बड़े ट्राइंगल को 3 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है एंड कलर ईच 1/3 विथ अ डिफरेंट कलर. सी, दिस इज हाउ. अब ये जो है यहाँ ये लाइन नीचे था, हमने ऊपर कर दिया और इनको तीनों को जो है मतलब जो है अलग अलग कलर से हमने वो कर दिया है. अब कलर भी इसमें डाल देंगे. ठीक है, आपको अच्छे से डालना है सारे कलर. हाँ, ये मेरी तरह इस तरह कलर नहीं डालना है. ओके, नाउ दिस इज डन. नाउ विल टेक वन मोर कलर. ब्लैक ले लेंगे इनके लिए. Yes, done. I'll take out one more color, that is light green. Yes, this is done. Very good. Yes, like this way we can do it. Now see, we'll change the pointer. 6 parts of a rectangle. Rani has divided a green rectangle into 6 equal parts like this. See, you can see this rectangle is divided into 6 equal parts. Rani has divided it into 6 equal parts like this. उसने इस तरह किया है 3 standing line and 2 sleeping line or horizontal line. Now, what we have to do? Now you divide each of these rectangles into 6 equal parts. Use a different way for each of the 3 rectangles. Now we have to divide these 3 rectangles into 6 equal parts and we have to use a different way for each of the 3 rectangles. तीनों को अलग अलग तरीके से यूज करना है. सबको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. पहले वाले को कर देते हैं. See, like this. Here we have made two horizontal line and 1 vertical line. So now this rectangle is divided into 6 equal parts. Again we'll do for the second one. Here also we can see
This rectangle is also divided. We have drawn two vertical lines and one horizontal line to divide this rectangle into 6 equal parts. And the last one is we'll use all standing lines to divide it into 6 equal parts. Like this we can divide it into 6 equal parts. Now discuss, how will you check that each part is really 1/6 of that rectangle. अब इसको चेक कैसे करेंगे कि इसका जो हर एक पार्ट है वो 1/6 ही है, उसको काटेंगे और ओवरलैप करेंगे तभी पता लगेगा. दिस कैन बी डन बाय मेकिंग cutouts on tracing paper. Tracing paper पे इसके cutouts लेकर, cutout should be placed on one over the other, and if the cutout completely covers another part and its opposite is also true, then it means that both parts are equal. अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप उसके कटआउट उसके ऊपर हम लोग रखेंगे, ठीक है, अगर वो पूरा ही कवर करता है उसको, that means both the parts are equal. This process should be repeated for all the parts to check if they are 1/6 of the given rectangle. सभी के लिए हम ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं. Now the green rectangle is bigger than the blue one. Can we say that 1/6 of green rectangle is bigger than the 1/6 of the blue rectangle? See, ये ग्रीन वाला है, ये इससे थोड़ा बड़ा है ब्लू वाले से. तो हम लोग कह सकते हैं सभी both the rectangles are divided into 6 equal parts, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो 1/6 पार्ट है वो इससे थोड़ा बड़ा है. Obviously बड़ा ही होगा. क्यों? Because this rectangle is having a bigger area than this blue one. So the 1/6 part of this rectangle will be always bigger than the 1/6 part of this blue rectangle. Let us see. Yes, if the whole is bigger, अगर बड़ा है, रोटी जैसे रोटी के 4 इक्वल पार्ट करेंगे, छोटी रोटी के 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो छोटे टुकड़े होंगे, बड़ी रोटी के 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो बड़े टुकड़े होंगे. उसी तरह यहाँ पर भी बड़ा रेक्टेंगल है और उसके 6 इक्वल पार्ट्स किए तो उसके 6 इक्वल पार्ट्स है वो बड़े होंगे, और छोटा रेक्टेंगल है उसके 6 इक्वल पार्ट्स किए, then it will be a smaller, then its part is also bigger. So 1/6 of a green rectangle is bigger than 1/6 of the blue rectangle. That is very much true. Thank you.